So actually this topic is called origin and evolution of life. ओके तो ये टॉपिक है हमारा origin and evolution of life. ओके व्हाई? बिकॉज origin का मतलब क्या है? सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड what is the meaning of origin and what is the meaning of evolution of life. ठीक है? Can you tell me the difference? What is origin and what is evolution of life? कुछ फर्क है उसमें? Origin is the beginning of life and evolution is the modification occurring afterwards. हैं? अच्छे से बोलो, घूम घूम क्यों हो रहे हो? आराम से बोलिए. सर origin, हाँ, origin मतलब एक नया लाइफ origin of life मतलब लाइफ बिगिन होता है और evolution मतलब the modifications that occur in the life for better survival. उसके बाद मैंने अब कौन सा हो सकता है? As on today, what is possible? Sir, evolution is possible, but origin is no more possible. क्या? Both are possible. Why origin is not possible, Shashwat? Sir, because in the primitive Earth, the atmosphere was reducing. चुप. ये क्या मिनसे कर रहा है? You know that to explain, I don't mind if you tell in Odia or Hindi. I don't tell मिनसे ये इंग्लिश वाले सिखा दिए हम लोग को repetition of words. You know मिनसे. चलो अच्छे से समझ के आराम से बताओ. उड़िया में बताओ, हिंदी में बताओ, तेलुगु में बताओ, तमिल में बताओ. What do you feel that which can still happen? Sir, evolution can still happen, but origin can no longer happen. Why? कारण सर primitive earth रे सर atmosphere टा reducing थिला जो पे सर energy supply कले सर माने सर जो carbon dioxide थिला और सर water सर मन सर react करके सर organic compound सर दे पड़तले तो सर सही कारण सर माने सर जो inorganic substance रो organic synthesis सही पड़तला तो सर एबे किंतु सर ऑक्सीजन अछि तो सर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सर अन्य प्रोडक्ट ही जीवो सर. और सोचो. Sir, both can happen. Why origin cannot happen today? So you are telling the atmosphere is oxygenic, so that is why origin is not going to happen. Okay? Think more. Sir? Sir, both can happen. Sir, origin may not happen because there is no more drastic changes happening. Stop. So what is may not happen? I want your suggestion. So I don't. Why may not? माने you are in doubt. तो doubtless answer दिया जाए ना. Why are you telling may not? Either you say होगा या you say नहीं होगा. बस ये बीच वाला रास्ता लेने का कोई जरूरत नहीं है. जैसे शाश्वत डायरेक्टली बोल रहा है नहीं होगा बस. तो तुम लोग उस तरह सॉलिड स्टैंड्स दो ना. मन चाहे स्टैंड्स क्या ले रहे हो? हाँ बोलिए. Think and tell. सर दोनों होगा. और चुप रहो. पहले मैं उनका सुन तो लूं. बताओ होटा. What were you believing? And will it happen or सर not? और नहीं होगा क्योंकि ना उसको होने के लिए एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज की जरूरत है. So why do you expect that the change cannot happen? भाई चेंज तो हो सकता है ना. ड्रास्टिक चेंज क्यों नहीं हो सकता? So there can be any catastrophic event. है कि नहीं? कोई भी catastrophic event हाँ लगे can happen. Why are you in denial mode? समझ में कि नहीं?
तो change can happen or not? Yes, you will not Yes, be sir. there. If it occurs, then yes, yes. Yes, you will not be there to see it. Okay, वही उसका इशू है कि चेंज तो हो सकता है बट शायद हम ना हो उसे देखने के लिए. Understood? So we may not be there to say. Okay? किंतु आज के डेट पे इवोल्यूशन ओरिजिन क्यों नहीं हो सकता? Why as on today origin cannot occur? देख रहे हो ना, ये टर्म पे क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म, एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द टर्म, अगेन देखो इतना सीरियसनेस तो चलो है नहीं एनसीईआरटी सिलेबस में, बट स्टिल कभी कभी अगर आपको सोचना पड़ जाए, बिकॉज दिस विल बी अ क्वेश्चन. सपोज आप बोलोगे केवीपीए में आई लाइक इवोल्यूशन, तो दे विल आस्क अ क्वेश्चन that why origin cannot occur now, and you know the answer is very simple, because it has already occurred. So it has already occurred. तो इसीलिए origin तो एक ही बार होगा ना, एंड वो हो चुका है. तो इसीलिए दोबारा origin होने के लिए हमें एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट की जरूरत है. Means the destruction of the whole biological All kind of life form. Yes, all kind of life should be destroyed to zero, and अगर वहां दोबारा life originate करता है. Okay, so like that. So this is the concept, and origin can happen in Mars. है कि नहीं? Origin can happen in the moon. Yes, sir. Why? Because अभी तक वहां कोई known क्या? There is no known organism. Life form. समझ में आया कि नहीं? चलिए, गुड. सो इसलिए प्लीज रिमेम्बर, इसलिए इन द टर्म्स ऑफ थेसोडियस डब्जेंस्की. ओके, तो थेसोडियस डब्जेंस्की एक साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने क्या कहा? दैट ओरिजिन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इवोल्यूशन हेंस. ठीक है, क्योंकि एक बार ओरिजिन हो गया. ओके, तो एक बार ओरिजिन हो गया, क्या है उसके बाद दोबारा एटलीस्ट इस दुनिया में नहीं होगा क्या योर ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन हैज ऑलरेडी हैपेंड. ठीक है, तो ओरिजिन हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो इसीलिए आपका दूसरी बार ओरिजिन नहीं हो सकता है. हो सकता है अगर हमारा कोई कैटास्ट्रोफिक इवेंट हो एंड पूरा लाइफ फॉर्म टोटली डिस्ट्रॉय हो जाए. अंडरस्टूड? सो दैट इज द कंसेप्ट. सो इन द टर्म्स ऑफ थेसोडियस डब्जेंस्की, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था दैट एक बार ओरिजिन होगा तो उसके बाद सिर्फ इवोल्यूशन हो सकता है, दोबारा ओरिजिन नहीं हो सकता. एंड अगर हो सकता है तो किस केस में होगा? दैट पूरा जो लिविंग किंगडम है हमारा, द लिविंग वर्ल्ड, वो डिस्ट्रॉय हो जाए एंड वो फिर आए. ठीक है, so this is the concept. Okay, so now there is any doubt? तो इसीलिए there may be origin of life, but not in our world, because in our world already life has originated. ठीक है, तो already the life has originated. ठीक है जी, so this is what you have to understand now. तो इसीलिए जब भी हम लोगों ने क्या, जब भी हम लोगों ने ओरिजिन का आंसर दिया, ओके, whenever people started to discuss origin,
ultimately they discussed what? Evolution. समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए Yes, जब भी उन्होंने origin को explain करने की कोशिश की, जैसे पहले लोगों ने क्या किया कि जो suddenly where human came from, भगवान ने बनाया. समझ आया कि नहीं? God made humans. Okay, तो this was a very simple statement that God made humans. ठीक है. So इसीलिए आपका you should know these concepts. ठीक है. चलिए, so वही चीज हम डिस्कस करेंगे that origin. तो इसलिए डेफिनेशंस हम लोग पहले डिस्कस करेंगे. डेफिनेशन, इवन जब आपको मैं बोलूं, सपोज आप किसी को भी बोलोगे कि मैं एक बायोलॉजी स्टूडेंट हूं, तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ही विल आस्क? बताइए अभिषेक. सर अगर आप बोलते हो किसी को कि सर मैं तो बायोलॉजी स्टूडेंट हूं, तो जो नॉर्मल मैन पहला एक क्वेश्चन पूछता सर, है. हाँ बोलो. पहले चिकन आया या पहले अंडा? यस. तो बायोलॉजी को लोगों ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन से एसरटेन करके रखा हुआ है दैट अच्छा तुम बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो बताओ पहले अंडा या मुर्गी, है लगे नहीं? पहले मुर्गी आया या अंडा? तो एनीबॉडी सेज दैट आई एम अ बायोलॉजी स्टूडेंट, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट दे आस्क इज क्या? पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आया? सो व्हाट डू यू बिलीव शाश्वत, पहले कौन आया? सर पहले मुर्गी आया था सर. पहले मेरे हिसाब मुर्गी से. आया. चलिए. एंड योर अंशुमन त्रिपाठी, तो पहले कौन आया यू फील? सर आई ऑल्सो फील पहले मुर्गी आया. अच्छा, तो आशा रानी पहले कौन आया यू फील? सेम. व्हाई डू यू सजेस्ट मुर्गी कहाँ से आया? बिकॉज मुर्गी तो अंडे से ही आएगा ना, तो आपका मुर्गी कहाँ से आया? बोलो. एनीबॉडी, व्हाई यू फील दैट पहले मुर्गी आया है? सर क्योंकि सर जो अंडे का सर जो मतलब शेल होता है सर उसमें जो कंपोजिशन मतलब. शाश्वत पागल, पागल शाश्वत, तुम जस्ट आंसर को तो आंसर जैसे करो ना. ये इसलिए आया इसलिए वो ऐसा नहीं आया, ये सब क्या स्टोरी है? वाई Sir? हाँ बोलो उठा. सर आई फील मुर्गी केम थ्रू इवोल्यूशन, उसके बाद उसने अंडा देना शुरू किया सर. बस दिस इज व्हाट यू हैव टू आंसर, दैट मुर्गी इज अ प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड मुर्गी लेड द एग. समझ में आया? तो इसलिए मुर्गी जो है वो कहाँ से आया? वो इवोल्यूशन का प्रोडक्ट है. मुर्गी कहाँ से आया? मुर्गी आया कहाँ से बताइए? फ्रॉम रेप्टाइल्स. अब रेप्टाइल कहाँ से आया? आप बोलोगे एम्फीबियंस. एम्फीबियन कहाँ से आया? फिशेस. फिशेस कहाँ से आया? साइक्लोस्टोम्स. ऐसे करते 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 आ जाओगे बैक्टीरिया में. अब बैक्टीरिया कहाँ से आया? So then you have no answer. तो इसीलिए the bacteria या the first life actually came from what? The first life actually came from non-living things. Okay? या chemistry. ओके तो ये हमारा एक कंसेप्ट है, ये हम लोग बाद में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. तो इसीलिए ऑरिजिन का मतलब क्या है? ऑरिजिन का मतलब है अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट लाइफ. सो तो हाउ विल बी? तो डेफिनेशन नंबर 1 is origin of life. So it discusses the origin of first life forms from inanimate matter. Okay,
So it discusses the origin of first life from inanimate matter. Once origin has occurred, okay, no new origin is referred to as origin of life. Okay, it is referred to as क्या? Evolution. Because जिस जमाने में रेप्टाइल्स थे उस जमाने में बर्ड्स नहीं थे सपोज, तो अब जैसे ही बर्ड्स आए तो लोगों ने क्या सजेस्ट किया? दैट बर्ड्स originated. No, it is not a correct term. Birds did not origin. ठीक है? Nine to 10. एक सेकेंड. I'm not एक सेकेंड एक्चुअली. आज तो सारा क्लासेस स्टार्ट हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. मैं वो सिद्धार्थ सर का थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो टाइमिंग का. चलिए, सो आया समझ? महानुभाव, दिग्विजयी, वीर, पांचाल क्लास में पधार रहे हैं. कौन आ रहा है बोलो तो? पांचाल नरेश. हाँ, अभी आ रहे हैं. उनका आँख खुल गया, गेम खत्म हो गया उसका. पबजी इज ओवर. चलो, अलाउ कर दिया मैंने बेचारे को. चलिए, तो once origin has occurred, no new origin is referred to as origin of life. It is referred to as evolution. तो इसलिए आज के डेट पे क्या हो सकता है? इवोल्यूशन हो सकता है, origin नहीं हो सकता. क्यों भाई? Because sir origin already हो चुका है. हमारे दुनिया में origin already हो चुका है. तो डॉब्झांस्की ने क्या कहा कि origin for the first time and evolution hence. Okay, तो this is the concept. Now second term है हमारा क्या? Evolution. Okay, तो second term is evolution. ओके, नाउ इवोल्यूशन, और इसको हम लोग बोलते हैं बायोपोएसिस. ओके, सो इवोल्यूशन के बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, समझ रहे हो कि नहीं? तो इसीलिए जो सिनोनिम्स ऑफ इवोल्यूशन में हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? तो इसमें अलग अलग टर्म्स हम लोग बोल सकते हैं. क्या? बायोपोएसिस. तो बायोपोएसिस का मतलब क्या है? दैट अगर आपको एरिथ्रोपोएसिस मालूम है, याद है कि नहीं? Yes, sir. तो उसी तरह जो बायोपोएसिस है, तो उसका मीनिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर थॉट टू डेवलप. ओके, सो जो ओके थॉट टू डेवलप. तो इसीलिए नहीं, एक्चुअली मैं ब्रिटानिका का डेफिनेशन देख रहा हूं, तो ये ओरिजिन को ही बायोपोएसिस बोल रहा है. तो हम लोग उसको ओरिजिन में एक बार कंफर्म कर लेंगे. जो ब्रिटानिका थ्योरी है, ब्रिटानिका क्या है वो? ब्रिटानिका जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका,
तो इसको हम लोग बायोपोएसिस नहीं बोलेंगे, इसी को बोल देंगे। सो इसमें हम लोग लिख सकते हैं दैट origin of life is also referred to as क्या? Biopoiesis. Okay, origin of life is also referred to as biopoiesis, comma, which means, okay, which means, तो उसका क्या मीनिंग है? A process, okay, which means a process by which living organisms are thought to develop from non-living matter and the basis of a theory on the origin of life on earth. ठीक है? Now evolution has been derived from two Greek words. Ex, exit, भागो यहाँ से। तो exit का मतलब क्या है? Out. प्लस volva का मतलब है to roll. ओके, रिवॉल्व, रिवॉल्व मतलब राउंड राउंड वॉल्व, ओके, राउंड राउंड रोलिंग, तो टू रोल। तो इसीलिए इवोल्यूशन का जो डेफिनेशन है, ओके, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवोल्यूशन? तो रोलिंग आउट, ओके, रोलिंग आउट ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम ओल्डर स्पीशीज, ओके। तो इसीलिए हम लोग इवोल्यूशन को क्या कह सकते हैं? दैट रोलिंग आउट ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज, ओके। तो इसको हम लोग इवोल्यूशन बोल सकते हैं। नाउ कैसे रोल आउट करेगा न्यू स्पीशीज? बाय एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस, ओके। तो इसीलिए इवोल्यूशन इज चेंज in the heritable characteristics of biological populations over successive generations. Pehla, this results in kya? This results in the formation of new species. Okay, this results in the formation of new species from the pre-existing ones by accumulating क्या? Variations, by accumulating heritable variations, not only variations, ये heritable होना चाहिए, मतलब जो आप किसी से ले सको एंड जो आप किसी को दे सको, ओके। तो समझ में आया? तो जो आप किसी से ले सको, जो आप किसी को दे सको, सो दैट इज कॉल्ड हेरिटेबल वेरिएशंस, ओके। सो दिस इज द कंसेप्ट। इसलिए प्लीज रिमेंबर दैट वी शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स, क्योंकि इन नेचर या इन दिस वर्ल्ड जब भी हमने ओरिजिन को डिस्कस करने को बात किया, तो वी डिस्कस्ड व्हाट? तो वी डिस्कस्ड द व्हाट? बताइए, इवोल्यूशन। तो इसलिए हम लोग सम ओल्ड थ्योरीज डिस्कस करेंगे। आप लोग थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ लेंगे ना, क्या आप बोल रहे हो? मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाऊं ना, आप पढ़ लोगे? सर हम पढ़ लेंगे। शाश्वत पाठी बोलेगा, नहीं तो वो कंप्लेन कर देता है ना। सर हम पढ़ेंगे सर। शाश्वत पाठी हम पढ़ कंप्लेन लेंगे। कर देता है और वो कर देता है कौन? हमारा सब्यसाची मूसा। मूसा मूसा है कि नहीं? सर मूसा कहाँ गया? यस सर, हूँ सर। हाँ, तो तू क्या बोल रहा है? तुम लोग पढ़ लोगे ना, मेरे को लाइन बाय लाइन पढ़ाना है? सर पढ़ा दीजिए सर। चलिए, सो एक्चुअली सम ओल्ड थ्योरीज जो हम लोग जानते हैं, तो भाई देखो, दुनिया में कुछ भी हुआ तो किसने किया? बोलो, किसने तेरे को कंप्लेनिंग एटीट्यूड दिया? बोल, तेरा मम्मी डैडी ने सिखाया ना, भगवान ने दिया? तो इसलिए ब्लेम द गॉड बिकॉज ही डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए अगर आप देखोगे
कि जो हमारे प्री एग्जिस्टिंग थ्योरीज है, ओके, सो ये जो प्री एग्जिस्टिंग थ्योरीज है, you know actually what I do when I teach this chapter evolution, I divide into 4 topics. उसको मैं 4 अलग अलग टॉपिक्स में डिस्कस करता हूँ ऑरिजिन ऑफ इवोल्यूशन। तो जो पहला मैं आपको बता सकता हूँ दैट इसको हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस चैप्टर एक्चुअली involves 4 different, एक्चुअली जब को एनसीईआरटी को लोड शेड करना था उसने क्या किया, तो उसने इस चैप्टर को काट के अलग कर दिया, छोटा छोटा कर दिया। पहले ये 4 अलग अलग चैप्टर हुआ करते थे इन ओल्ड एनसीईआरटी, अब इसको काट के एक कर दिया है। तो व्हाट आर द 4 चैप्टर्स? तो सबसे पहला चैप्टर है, ओके, तो चैप्टर नंबर 1 इज एक्चुअली ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो जो सब पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, द फर्स्ट टॉपिक दैट वी डिस्कस इज एक्चुअली ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो हाउ बड़ा दुखी कर रहा, ओके, ओरिजिन ऑफ लाइफ मतलब हाउ, इसका मतलब क्या है, फ्रॉम 0, ओके, टिल फर्स्ट लाइफ। तो उसको हम लोग कहेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। उसके बाद जो सेकेंड चैप्टर है दैट इज कॉल्ड क्या, भाई तुम बड़ा बड़ा हाँक दिया, साबित करो। तो दिस इज कॉल्ड एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन हुआ है उसको आप साबित करिए। सो दिस इज कॉल्ड एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। थर्ड चैप्टर क्या है, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, माने कुछ थ्योरीज लोगों ने दिया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, तो इसमें बेसिकली हम 3 थ्योरी डिस्कस करते हैं, लामार्किज्म है कि नहीं, डार्विनिज्म एंड नहीं, डार्विनिज्म कॉमा म्यूटेशन थ्योरी, ओके, म्यूटेशन थ्योरी एंड क्या, म्यूटेशन थ्योरी एंड आपका क्या, योर लास्ट वन इज म्यूटेशन थ्योरी एंड उसके बाद आ जाएगा जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, ओके, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। सो ये हमारा 3 टॉपिक्स है। एंड जो चौथा टॉपिक है उसको व्हाट आई से इज एक्चुअली डायनामिक्स ऑफ इवोल्यूशन, ओके। तो मेन थिंग क्या है, जो हमारा जनरली इवोल्यूशन में आप 2 चीजें पाएंगे, तो दैट इज एक है स्टैटिक टॉपिक्स, माने जो है सो है, एंड एक है डायनामिक्स टॉपिक्स जिसमें आप सोच सकते हो, जिसमें अपने व्यूज को ऐड कर सकते हो, ओके। तो इसलिए व्हाट आई डू जनरली, जैसे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन है, अगर फॉसिल एविडेंस है तो है, क्या आप बदल दोगे उसको, बताइए, तो हम उसको बदल नहीं सकते। तो दीज आर स्टैटिक टॉपिक्स, है तो है। अब डार्विनिज्म चार्ल्स डार्विन ने दिया था, तो क्या तुम उसको चेंज करके आशीर्वाद उल्टा कर दोगे, नहीं कर सकते। सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसलिए ये सब स्टैटिक टॉपिक्स है। बट डायनामिक टॉपिक्स में क्या आ जाएगा, आइसोलेशन, ओके, पॉपुलेशन इवोल्यूशन, ओके, इस तरह से जो थॉट बेस्ड, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ओके, तो जो थॉट बेस्ड टॉपिक्स है उसको हम अलग कर देते हैं, ओके, स्पेसिएशन, फाइन। तो ये सब आ जाएगा डायनामिक्स ऑफ इवोल्यूशन में। एंड आखिरी जो चैप्टर है हमारा दैट इज इवोल्यूशन ऑफ मैन, ओके, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो इसमें हम लोग इवन जो मैं इसमें इवोल्यूशन ऑफ मैन में आई विल ऑल्सो टीच इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, ओके। तो इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स भी इसी टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगा।
आई विल नॉट टीच इन एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, क्योंकि ये दो अलग अलग है, इस पे हमें फाइलोजेनी डिस्कस करना है, तो ये हम दोनों हम यहाँ उसको पढ़ लेंगे। तो देख रहे हो, तो एक्चुअली दिस चैप्टर इज हिडन 5 चैप्टर्स, तो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो दिस इज हिडन 5 चैप्टर्स। चलिए, सो नाउ, तो अब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है एक्चुअली, सो फर्स्ट चैप्टर है हमारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ। तो चैप्टर नंबर 1 इज एक्चुअली ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। सो ये हमारा पहला चैप्टर है, तो वी विल डिवोट इट। आपके बुक्स में एक दो पन्ना दिया है उसके बारे में, ओके। सो दिस इज कॉल्ड ऑरिजिन ऑफ लाइफ। एंड एक्चुअली जब ऑरिजिन डिस्कस हुआ तो पहले पहले लोगों ने कुछ कह दिया, तो सबसे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे थ्योरी ऑफ क्या, ओके। सो सबसे पहला थ्योरी हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए, दैट द थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ स्पेशल बाय स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। सो थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ बाय स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ बाय थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ बाय स्पेशल क्रिएशन ऑफ गॉड, ओके, बाय स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ बाय स्पेशल क्रिएशन बाय गॉड लिखना चाहिए, बाय गॉड माने गॉड हैज प्रोड्यूस्ड लाइफ, ठीक है। तो ये उसका कंसेप्ट है। तो इसमें आपका अलग अलग व्यूज है। तो अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन माइथोलॉजी, ओके, तो आपका जो क्रिश्चियन माइथोलॉजी के अनुसार, ओके, जो अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, okay, as proposed by Father Suarez, life was created by the supernatural power known as God. समझ में? तो क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स उन लोग का कॉमन ओरिजिन है, तो दोनों एक ही चीज कहते हैं, है कि नहीं? सो तो अकॉर्डिंग टू देम क्या था? फाइन. So according to the Bible, the world was created in 6 days. Okay? तो first day क्या आया? God made heaven and earth. Second day क्या हुआ? He separated sky from water. Third day क्या हुआ? He made dry land and plants. Fourth day क्या हुआ? He formed sun, moon and stars.